Good evening. शुभ संध्या। How are you doing all? आप सब कैसे हो? After a long time, I'm doing a recorded message, and through this recorded message, I'm sharing a message with you. काफी दिनों के बाद मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ। I believe through this message, God will speak to us, मैं विश्वास करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे and I believe the Lord will help us to know that we are His. और मुझे ये विश्वास है कि परमेश्वर हमें ये समझने में कोशिश करेंगे कि हम उनके हैं। Let us quickly pray, and then we'll go to the Word. चलिए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में देखेंगे। Father, in Jesus' name, we want to thank you for this beautiful day. परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। Father, I pray, Lord, through this message that you will speak to your people. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप अपने लोगों से बात करेंगे And they will have witnessed, Lord, that you are speaking to them. और वो जानेंगे कि आप उनसे बात कर रहे हैं And they will have a hunger and thirst to know you, Father. और उनमें भूख और प्यास होगी आपको जानने के लिए। In Jesus' name I ask this, Father. यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, Amen. आमीन। I want to start with a scripture which I read many times, but it made sense to me very recently. मैं एक ऐसे वचन से शुरुआत करना चाहता हूँ जो मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन हाल ही में मैंने इस वचन को अच्छी तरीके से समझा है। In John chapter 17, we can see Jesus is praying. यूहन्ना 17 में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। I have often quoted John chapter 17 verse 3 from this passage, from this prayer. मैंने कई बार इस प्रार्थना से यूहन्ना का 17:3 इसको बोला है वचन में। This is eternal life. What is eternal life? That we may know the Father and the Son. That is eternal life. कि ये अनंत काल का जीवन है। क्या है अनंत काल का जीवन? कि हम परमेश्वर पिता और पुत्र को जानेंगे, यह अनंत काल का जीवन है। But very recently, as I was going through this passage, लेकिन हाल ही में जब मैं इसको फिर से पढ़ रहा था, I realized there are beautiful truths are said in this prayer. मैं ये समझने लगा कि और भी कई सच है इस वचन में जो हम देख सकते हैं। So let me read one scripture, and from this I will continue my message. तो चलिए मैं एक वचन पढ़ूंगा और यहाँ से मैं अपने संदेश को शुरू करूंगा। John chapter 17 verse 26. यूहन्ना का 17:26। John chapter 17 verse 26. यूहन्ना का 17:26। I will read it in English, and then it will be read in Hindi. And I have declared to them your name, and will declare it, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. न केवल मैंने तेरे नाम का उन्हें बोध कराया है, बल्कि मैं इसका बोध कराता भी रहूंगा, ताकि वह प्रेम जो तूने मुझ पर दर्शाया है उनमें भी हो और मैं भी उनमें रहूं। So Jesus तो यीशु is praying, प्रार्थना कर रहे हैं and he's speaking to the Father, and he's praying to the Father for us. और वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए। And he said like this, और उन्होंने ऐसे कहा, Father, I have declared to them about you. परमेश्वर पिता, मैं घोषणा करता हूँ आपके बारे में। So that is what we can see, have come to reveal the Father to us. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि मैं आया हूँ ताकि मैं परमेश्वर पिता को तुम्हें दिखा सकूं। Even when we read in Hebrew, in the book of Hebrew, the author says like this: Jesus is the express image of the Father. और जब हम इब्रानियों की पुस्तक में भी पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने मिलता है वहां पर कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। So one day Philip was asking Jesus, "Can you show us the Father?" तो एक दिन फिलिप ने पूछा कि क्या यीशु आप हमें परमेश्वर पिता दिखा सकते हैं? And then Jesus said to Philip, "If you see me, you have seen the Father." और यीशु ने फिलिप से कहा, अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने परमेश्वर पिता को देख लिया। So we can see how Jesus was declaring the Father while he was on the earth. तो हम देख सकते हैं किस तरीके से यीशु मसीह परमेश्वर पिता की घोषणा कर रहे थे जब वो धरती पर थे। Amen. So that was one part of the story. आमेन। तो ये कहानी का एक हिस्सा है। And then Jesus is saying, I have declared to them, and I will declare it to them also.
और यीशु यहाँ पर फिर कहते हैं, हम देखते हैं वचन में कि मैंने घोषणा किया है और मैं आगे भी घोषणा करूंगा। That means Jesus is constantly knocking our hearts to reveal the Father to us. इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह लगातार हमारे हृदय को खटखटा रहे हैं ताकि वो परमेश्वर पिता को हमें दिखा सके। Because sometimes we have our own mind. Through this mind, we see things very differently. क्योंकि कई बार हम अपने खुद की सोच और मन से बातों को अलग तरीके से ही देखते हैं। So, for example, let me quote a scripture. In Genesis chapter 1, verse 26, we can see God has created us in His own image. उदाहरण के तौर पे उत्पत्ति के किताब में 1:26 वचन में वहां पर लिखा है कि हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। He has created us in His own image. परमेश्वर ने हमें अपने खुद के रूप में बनाया है। But we also have created God in our own imagination. लेकिन ऐसा भी हुआ है कि हमने हमारे खुद के सोच में परमेश्वर को बना के रखा है। Sometimes we see Him like a bird. कभी हम उनको चिड़िया के जैसे देखते हैं, Sometimes we see Him like an animal. कभी हम उनको जानवर के जैसे देखते हैं, Sometimes we see Him like the creation of this earth. कभी कभी हम देखते हैं कि उनकी रचना की गई है। So we have a various imagination, and through this imagination we are trying to see God. तो हमारे सोच अलग अलग होते हैं और इन सोच के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर पिता को देखें। All these people who are trying to create God in their own imagination, they are trying to reach out to God through these various means. ये सारे लोग जो परमेश्वर को इन अलग अलग रूप में ढूंढ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तो वो परमेश्वर के पास पहुंचे। So it is impossible to reach God through these various means. लेकिन ये नामुमकिन है कि हम इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचे, Because all these things doesn't talk about God. क्योंकि ये सारी बातें तो परमेश्वर के बारे में नहीं बात करती It हैं। is man's imagination. ये हमारे खुद के मन की सोच है। So that is why Jesus Himself, God Himself, have to send His own Son. You go and reveal me to them. इसीलिए परमेश्वर पिता ने खुद अपने पुत्र को हमारे पास भेजा, इसीलिए ताकि यीशु मसीह हमें दिखाएंगे कि परमेश्वर पिता कौन है। And of course, there are so many things Jesus did while He came on this earth. हाँ, और ये भी है कि यीशु ने पृथ्वी पर आकर और बहुत सारे काम किए हैं। He died for our sins. वो हमारे पापों के लिए मरे, He healed our sickness. उन्होंने हमें चंगाई दी, He gave us hope. वो हमें आशा देते हैं, And finally, He said, I am with you always. और अंत में उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। And all these things He has done, but primarily, apart from all these things, He has revealed the Father to us. और ये saरी बातें उन्होंने की है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने हमें दिखाया है कि परमेश्वर पिता कौन है। I mean, that is what we can see this in the scripture, that I have declared to them your name and will declare it. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं इस वचन में कि मैंने घोषणा किया है, बोध कराया है कि आप कौन है, और मैं घोषणा करता रहूंगा या बोध कराता भी रहूंगा। Such a beautiful scripture this is for us. ये इतना सुंदर वचन है हमारे लिए। We may not know God completely, शायद हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, but Jesus has taken the responsibility to knock our hearts and reveal the Father to us. लेकिन यीशु मसीह ने अपने ऊपर ये जिम्मा लिया है कि वो हमारे हृदय पे खटखटाएंगे और हमें दिखाएंगे कि देखो ये परमेश्वर पिता है। Even if you have made God in our own imagination, भले ही हमने परमेश्वर पिता को अपने मन से ढाल के रखा है, He will ask a question, am I really like this to you? वो हमसे आकर पूछेंगे, क्या मैं सचमुच ऐसा हूँ तुम्हारे जीवन में? Am I really am I really so angry at you? क्या मैं सच में इतना गुस्सा वाला परमेश्वर हूँ, गुस्सा में रहने वाला परमेश्वर हूँ? Do I really make you scared? क्या मैं तुम्हें डराने वाला परमेश्वर हूँ? No, these are the questions sometimes it comes in our mind. Is God really good? ये सवाल हमारे मन में कभी कभी आते हैं, क्या परमेश्वर वाकई में अच्छे परमेश्वर है, भले परमेश्वर So है? through this doubt, Jesus wants to reveal, yes, He is good to you. तो
इस शब्द के द्वारा भी परमेश्वर चाहते हैं, यीशु चाहते हैं कि वो हमें दिखाए कि हाँ, परमेश्वर पिता भले परमेश्वर हैं। Amen. So let us go further in the same scriptures. तो चलिए हम आगे इसी वचन में देखेंगे That the love with which you loved me may be in them, ताकि वह प्रेम जो तूने मुझ पर दर्शाया है उनमें भी हो and I in them. और मैं भी उनमें रहूं। So Jesus is saying, Father, the love, how much you have loved me, I pray the same love will be upon your people. तो यहाँ पर यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने मुझे प्रेम किया वही प्रेम इनके ऊपर रहे। Amen. In them. The God's love is inside us. परमेश्वर का प्रेम उनमें है, उनमें Amen. हमारे अंदर है। And then Jesus is saying, I in them, I have not left them alone. I will be with them. और यहाँ पर यीशु कहते हैं मैं उनमें, मैंने उनको छोड़ा नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनमें हूँ। Amen. So such a beautiful scripture. This is God. Jesus is constantly revealing the Father, and he's helping us to experience his love, and he's assuring that he is with us. तो ये इतना सुंदर वचन है। यहाँ पर यीशु लगातार घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता कौन है और वो हमारी मदद कर रहे हैं कि हम उनके प्रेम का अनुभव कर सके। Amen. Amen. But लेकिन because of the fallen mind, क्योंकि हम हमारे गिरने के कारण, पाप में गिरने के कारण हमारा मन और हमारा सोच इस तरीके से खराब हुआ है, we are not at times able to see God clearly. कई बार हम साफ तरीके से परमेश्वर को नहीं देख पाते And हैं। I want to expose some lies that sometimes we believe about God or about our own self. और मैं आज कुछ ऐसे झूठ का खुलासा करना चाहता हूँ जो हम कई बार अपने मन में रखते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर की ओर देखते हैं या परमेश्वर पे को देखते हैं। Because we don't see God clearly, we don't see ourselves properly. क्योंकि हम परमेश्वर को सही तरीके से नहीं देखते हैं, इसीलिए हम अपने आप को भी गलत तरीके से देखते हैं। Amen. So imagine, if the mirror you are going to see yourself is not showing you clearly, and that is how you will believe that that's how I look like this. सोचे आप आईने में देख रहे हैं अपने आप को, लेकिन आईना सही तरीके से दिखाई नहीं रहा है कि आप कैसे दिख रहे हो, तो लेकिन आप तो विश्वास करोगे कि हाँ मैं ऐसे ही दिखता हूँ, जो वो दिखाता है आप विश्वास करोगे। Sometimes I had gone to some exhibitions in that they have different kinds of glasses they have kept. तो मैं ऐसे एग्जीबिशन में गया हूँ जहाँ पर अलग तरीके के आईने रखे हैं। So sometimes when I go and stand before a glass, the glass will show me very big. तो कुछ आईने ऐसे हैं जिसके सामने जाके खड़ा हुआ हूँ मैं और मैं बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा हूँ उसमें। And then some mirror will show me that I'm looking very thin. और ऐसे कुछ आईने हैं जो मुझे ऐसे बहुत ज्यादा पतला दिखाते हैं। Some mirror will show that I'm very short. और कुछ आईने मुझे एकदम ही छोटा दिखाते हैं। Some mirror will show me that I'm very tall. कुछ आईने ऐसे दिखाएंगे जिसमें मैं कुछ ज्यादा ही लंबा दिख रहा हूँ। And when we see all these things, especially if your friend is there, you laugh at those images. और जब हम ये सारी बातें को देखते हैं, खास करके जब हमारे दोस्त साथ में होते हैं, तो हम बहुत हंसते हैं। And we know this is not real. और हम जानते हैं कि ये तो सच नहीं है। Because when we see our friends with their eyes, they don't look like that. क्योंकि जब हम अपने दोस्तों को अपने आंखों से खुद देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अरे ये तो ऐसे नहीं दिखते, ये सच नहीं है। The mirror is telling a lie. ये जो आईना है ये झूठ बता रहा है। But we have a mirror in our mind. लेकिन हमारे मन में आईना है। That mirror keeps telling us, we are not good. वो आईना हमें बताता रहता है कि नहीं, तुम अच्छे नहीं हो। I'll read few words which may help us to realize, these are lies that we are believing, that maybe, these are the lies that we are believing as if it's true in my life. तो मैं ना कुछ शब्द अब पढ़ने वाला हूँ और आपको ये सुन के शायद एहसास होगा कि अरे ये झूठ तो मैं अपने बारे में विश्वास कर रहा था इतनी देर तक। So for example, you may be thinking that I am not acceptable. कभी हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो स्वीकार ही नहीं हो पाऊंगा, Because कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। Maybe because our background is like that, maybe because our color is like that, so we feel that we are not acceptable. शायद क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है या मेरा जो चमड़े का कलर है वो ऐसा है। Sometimes we may feel I am not special.
कभी हमें लगता है कि मैं तो खास नहीं हूँ, Only other person is special. सिर्फ वो दूसरा व्यक्ति खास है, He has a very special phone. उसके पास एकदम ही खास फोन है, He's got a special house. उसके पास खास घर है, He's got a special friend. उसके पास खास दोस्त हैं। So then we may compare ourselves and then we will lose the joy that is in our heart. और हम ऐसे अपने हमारी खुद की तुलना करते हैं दूसरों के साथ और हमारे मन का जो खुशी है वो चला जाता है। Sometimes we feel that we are not loved. कभी हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। When we lose the joy in our heart by comparing with others, जब हम ये खुशी को खो देते हैं दूसरे के साथ तुलना करके, definitely we will feel that we are not loved. जरूर हमें ऐसा लगेगा कि हमसे तो कोई प्रेम नहीं करता। Even though other you may see other people are loved, भले ही हम देखें कि अरे दूसरे लोगों को तो बहुत लोग प्यार करते हैं, but I am an unloved person, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि नहीं, मैं तो मुझसे तो कोई प्रेम नहीं करता। and we may feel that I'm unwanted. हमें कई बार शायद ऐसे लगता है कि मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है, I'm not welcomed. मेरा यहाँ पर कोई मुझे यहाँ पर वेलकम नहीं कर रहा है, And I'm not safe. और मैं सुरक्षित नहीं हूँ, And I'm not important. और मैं जरूरी नहीं हूँ, And I'm not good enough. और मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। And this good enough often we believe because our parents have told us you're not good enough. Our teachers have told us that you're good enough. So because of these lies, our parents, our teachers, our friends, they often spoke to these lies. We believe this lie that I'm not good enough. और ये वाला झूठ जो है ना, हम में से कई लोग कई बार इस पे विश्वास करते हैं कि अरे तुम तो काफी नहीं हो, मतलब तुमसे तो ये नहीं होगा, क्योंकि कई बार ये झूठ जो है शायद हमारे माता पिता ने, शायद हमारे टीचर ने, अलग अलग लोगों ने हमारे जीवन में ये बात लगातार बोली है। And sometimes we may feel that I'm not going to make it. That means I may try, but I'm not going to finish it. I'm not going to make it in my life. और कई बार शायद हमें ऐसा लगता है कि अरे मुझसे तो पता नहीं कुछ भी नहीं होगा, शायद मैं कोशिश तो कर लूंगा लेकिन जीवन में मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला है। And sometimes some of them may think that I'm not beautiful. और कुछ लोग शायद ऐसे सोचते हैं कि मैं तो सुंदर नहीं हूँ। I have thought about myself like that. मैंने खुद अपने बारे में ऐसे सोचा है। I don't know whether other things or not, others think like that or not, but I have gone through this experience. मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पक्का बोल रहा हूँ, मैं इससे गुजरा हूँ। I have often compared myself with Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan. They have beautiful body. They dress so well. When I compare myself with them, I feel I'm not that smart. मैंने कई बार अपनी तुलना शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान से की है। उनके बारे में ऐसे सोचा है कि अरे वो उनकी क्या बॉडी है, क्या दिखते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। Sometimes, I often see, sometimes some of their WhatsApp images. Sometimes we put some heroes photos. Sometimes we put some heroines photos. We don't like to put our own photos, but we put other people's photos. व्हाट्सएप में आप लोगों ने कई बार भी देखा होगा कि कई बार लोग किसी हीरो हीरोइन का फोटो अपने डीपी पे डाल देते हैं। वो पसंद नहीं करते कि वो खुद का फोटो वहां पर डालें, Because they want others to feel I look like this person. क्योंकि वो चाहते कि दूसरे लोग देखें कि अरे मैं तो ऐसे सुंदर दिखता हूँ, मैं इसके जैसे दिखता हूँ। So this is why they do like that, because they feel they are not good enough, they are not beautiful. क्यों ऐसा करते हैं? कई बार इसीलिए है क्योंकि उनको लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। And then I'm not going to read all the points because I already crossed 18 minutes right now. मैं सारी बात तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हम 18 मिनट हो गए हैं। So sometimes we also have the feeling that I am not forgiven. कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमें क्षमा नहीं किया गया है। Now all these things, whatever I said, it is because of the mirror that we have in our mind, and that's how we see ourselves. ये सारी बातें जो मैंने अभी कही है इसीलिए है क्योंकि हमारे मन में एक आईना है और उसके द्वारा हम अपने आप को देखते हैं। And this is a lie about our own self. और ये हमारे बारे में झूठ है। And this mirror in our mind is not a real mirror. और ये आईना जो हमारे मन में है ये असली आईना नहीं है। We need to break this mirror. इस आईने को हमें तोड़ना है।
Sometimes in our strength we may not be able to do that. शायद हमारे खुद के सामर्थ्य से हम ये नहीं कर पाते हैं, That is why we have a Savior with us. इसीलिए हमारे पास एक उद्धार करता है. So Jesus is coming and helping us. He shatters every image, every the lies that we're believing about God or about our own self. He's breaking everything slowly, one by one, so that we will know Jesus and we will know the Father. इसीलिए यीशु हमारे पास आते हैं हमारी मदद करने के लिए, ताकि ये हर एक झूठ जो हमारे मन में है उसको एक एक करके वो तोड़े, ताकि हम सही तरीके से परमेश्वर पिता को देखें और देखें कि वो हमें कैसे देखते हैं. Amen. So Jesus is our Savior. तो यीशु मसीह हमारे उद्धारक है, उद्धार करता है. And I want to read some scriptures. Let us read Colossians chapter 2 verse 10. We will read. चलिए हम कुलोसियों का दूसरे अध्याय में 10वां वचन पढ़ते हैं. Let's read few scriptures. Colossians. I'll just take the scripture. Colossians chapter 2, verse 8 onwards we will read. Colossians chapter 2, 8 onwards we will read. Let's read in Hindi. कुलोसियों 2:8 से 10 हम पढ़ेंगे. ध्यान रखो कि तुम्हें अपने उन भौतिक विचारों और खोखले प्रपंच से कोई धोखा न ले जो मानवीय परंपरा से प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली आत्माओं की देन है, न कि मसीह की. Amen. क्योंकि परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ सदैव उसी में निवास करता है और उसी में स्थित होकर तुम परिपूर्ण बने हो. वह हर शासक और अधिकारी का शिरोमणि है. Amen. अभी देखिए यहाँ पर 8वां वचन पढ़ने के समय में हमें ऐसा मालूम पड़ेगा. So what I'm saying is when we read the verse 8 we will understand like this. 8वें वचन में हम ये देखते हैं, There are so many things we can get to hear from this world. ऐसी कितनी बातें हैं जो हम संसार में सुनते हैं. It can be like a tradition. शायद वो ऐसे सालों से होने वाली बातें हैं. It can be like a philosophy. शायद वो कोई ऐसे गहरी सोच वाली बातें हैं. But what Paul is saying, or Apostle Paul is saying over here, लेकिन यहाँ पर जो पौलुस है वो क्या कह रहे हैं? he's saying, if it is not of all these things, be aware. इन सारी बातों से तुम बच के रहो. If it is not of Christ, be aware. अगर ये बातें मसीह की नहीं है तो तुम संभल के रहो. So in Chennai, when we go to somebody's house, तो जब चेन्नई में हम किसी के घर जाते हैं, if there is a dog in their house, अगर उनके घर में कुत्ता है, there will be a warning outside the house. तो गेट के बाहर ही वहां पर एक वार्निंग रहता है. Beware dogs. वो हमें बोल देते हैं कि बाहर लिखा हुआ रहता है कि संभाल के रहो क्योंकि अंदर कुत्ते हैं. So we will be very careful when we enter the house. तो हम बहुत संभाल के उनके घर जाते हैं, अंदर जाते So हैं. similarly, when we hear something which is not fitting Christ, तो we should be very careful of what we are hearing. तो ठीक इसी तरह जब हम ऐसी कोई बात सुनते हैं जो यीशु से नहीं है, तब हमें बहुत संभाल के रहना है. Okay, let us read. For in God, क्योंकि यीशु मसीह में in Jesus, क्योंकि यीशु मसीह में dwells all the fullness of Godhead bodily. ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर की हैं. Amen. So that means God the Father, God the Holy Spirit, they are all living completely in Jesus. तो परमेश्वर पिता जो है, पवित्र आत्मा जो है, ये सब यीशु मसीह में है. Amen. So Amen. Jesus is filled with the Godhead of God, with Godhead bodily. That's what he's having the complete presence of God in him. यीशु में पूरे परमेश्वर की उपस्थिति है. And verse 10 says, और ऐसे वचन 10 में लिखा है, and और you are complete in him. तुम उनमें परिपूर्ण हो. Amen. Amen. What a beautiful scripture. कितना सुंदर वचन है. See, this is the truth that we should believe. तो ये वो सच है जिस पे हमें विश्वास करना है. This is the mirror that we should have to see ourselves. ये आईना है जो हमें रखना है, जिस पे विश्वास करना है. That we are complete in him. कि हम उनमें पूरे हैं, परिपूर्ण हैं. Amen. We are complete in him. हम उनमें परिपूर्ण हैं. Jesus is the head of all principalities and power.
यीशु मसीह जो है सब अधिकारी के शिरोमणि है, शासक और अधिकारी का शिरोमणि है। Amen. So, what a beautiful promise and what a beautiful revelation this is to us. कितना सुंदर वादा है और ये कितना सुंदर बात दिखाया है यीशु मसीह ने हमें। So, where are we? तो हम कहाँ हैं? We are in Him. हम उनमें हैं, यीशु में हैं। Amen. And because we are in Him, और क्योंकि हम उनमें हैं, we are complete in Him. हम उनमें पूरे परिपूर्ण हैं। So, all the lies that enemy has, put in our mind, तो ये सारी झूठी बातें जो शैतान ने हमारे मन में डाले हैं, what I said, I'm not acceptable, I'm not loved, I'm not wanted. वो सारी बातें जो कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, मैं तो कोई किसी काम का नहीं हूँ, ये सारी बातें, All these things are lies that we have believed. ये सारी बातें झूठ है जिस पे हमने विश्वास किया है। We have to break it in Jesus' name. हमें इन बातों को तोड़ना है यीशु मसीह के नाम में। And then we have to believe in the truth. और फिर हमें उन बातों में विश्वास रखना है जो सच्ची है। That in Jesus we are complete. यीशु मसीह में हम परिपूर्ण हैं। Amen. Amen. Now, why I'm saying all these things? ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ It आपको? is to expose the lies at times we believe about ourselves. ये उन बातों को दिखाने के लिए, उनका खुलासा करने के लिए है जो झूठ है जिस पे हम विश्वास करते हैं। And why we believe the lies about our own self? और क्यों हम झूठ पे विश्वास करते हैं अपने बारे में? Because we see God like that. क्योंकि हम परमेश्वर को ही गलत नजरिए से देखते हैं। And that is why we have this wrong mirror and wrong image in our own self. इसीलिए हम में ये गलत आईना है और हम अपने आप को गलत नजरिए से देखते हैं। Amen. Amen. So today, तो आज where is God? परमेश्वर कहाँ पर है? He is in us. वो हम में है, He is with us. वो हमारे साथ है And He is for us. और वो हमारे लिए है। Amen. Amen. This is the confidence that you and I have. तो इस बात पे हम एकदम विश्वास कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। You know, I want us to start from this place, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से शुरुआत करें, from this understanding. इस समझ से हम शुरुआत You करें। know, you don't have to go anywhere else to meet God, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से मिलने के लिए, because Jesus knows it's difficult for us to seek Him. क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि परमेश्वर को ढूंढना हमारे लिए कितना मुश्किल है। So that is why He has found us. इसीलिए उन्होंने हमें खोज निकाला है। Amen. That is why He has found us, and He has come inside us. इसीलिए उन्होंने हमें खोज निकाला है और वो हमारे अंदर आए हैं। Amen. This is the prayer Jesus made in John chapter 17, verse 26. I in them. ये वही प्रार्थना है जो यूहन्ना 17:26 में यीशु ने किया, मैं उनमें हूँ। Amen. So it's a beautiful promise and beautiful scripture for us to meditate on this. ये सुंदर वाचा है और ये बहुत ही सुंदर वचन है जिस पे हमें मनन करना है। And if you want to ask God, where are you? और अगर हम पूछना चाहते हैं ऐसे कि परमेश्वर कहाँ हो आप, Just close your eyes अपने आंखों को बंद कीजिए, and then speak to God who is inside us. परमेश्वर से बात करें जो हमारे अंदर है। Ask all the questions that you have concerning life or concerning Him. वो सारे सवाल पूछे जो उनके बारे में आप में है या संसार के बारे में, जीवन के बारे में आप सोचते हैं। I'm sure you may not get answers immediately. मुझे ये यकीन है कि सारे जवाब तो आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, But I'm also sure लेकिन मैं इस बात को भी पक्का जानता हूँ but we will have a beautiful journey of discovering Him day by day. कि हम एक बहुत ही सुंदर तरीके से उनको जानते रहेंगे और जानना शुरू करेंगे। Personally, I asked this question, looking at the sky, God, who are you? व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद ये सवाल पूछा है आकाश की ओर देख के कि परमेश्वर तुम कौन हो। I thought somebody will come and show that I am God. और मैंने सोचा कि कोई तो आके दिखाएगा कि मैं परमेश्वर हूँ, But nobody came like that. लेकिन कोई नहीं आया। But that question लेकिन वो सवाल that I asked on that particular night, जो मैंने उस रात को पूछा था, that question that I asked, वो सवाल जो मैंने पूछा था, I asked that question in Bombay मैंने वो सवाल मुंबई में पूछा था in 1999, something like that.
1999 में पूछा था, शायद 2000 से 1 साल पहले। And after that, और उसके बाद slowly I began to find or slowly began to discover Jesus is God. धीरे धीरे मुझे ये पता लगने लगा कि यीशु परमेश्वर है। It's a different story. How I met Jesus is a different story. ये अलग कहानी है कि मैं कैसे यीशु से मिला, But that question has made me to find Jesus, and that because I met with Jesus, all the lies that I believed about myself was slowly breaking day by day, day by day, day by day. लेकिन इस सवाल के बाद मैं यीशु से मिला और धीरे धीरे जो झूठ के ऊपर मैं विश्वास करता था अपने बारे में, वो धीरे धीरे करके यीशु मसीह में आने के बाद वो टूटता गया, वो उन झूठों का खुलासा होता गया। We all face challenges in life हम सब मुश्किलों का सामना करते हैं जीवन because में, at times if we fail, we think we are failures. क्योंकि हम कई बार हम सफलता नहीं प्राप्त करते, हमें लगता है कि हम असफल लोग ही हैं। Because we failed at a particular thing, क्योंकि हम असफल हुए हैं किसी चीज में या चीजों में, we feel we are a failure. हमें लगता है कि हम ही असफल लोग हैं। That's a lie. वो झूठ है। We have failed in one episode. हाँ, हमें एक बार हम असफल हुए हैं, That doesn't mean you are a failure. इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफल हैं। But sometimes these are the lies which we often face in different ways, and we believe those lies. ऐसे ही झूठ है जो हम कई बार सुनते हैं और उन पे विश्वास करते हैं। So we have a Holy Spirit who's with us. तो हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारे पास है, He knocks at our door. जो No? हमारे साथ है, वो हमारे हृदय पे खटखटाते हैं It's a lie. कि ये झूठ है। Sometimes we fall down. कभी कभार हम गिर जाते हैं, Sometimes we make mistakes. कई बार हम गलती करते हैं। So God doesn't leave us, परमेश्वर हमें छोड़ते नहीं है, not forsake us. नहीं नहीं हमें धुतकारते हैं। He gives his hands. Come, wake up, get up, son. Wipe your dirt. Come, let's walk again. वो बोलते हैं, चलो आओ मेरे पुत्र, अपने आप को साफ करो और वापस चलो मेरे साथ। You're not able to clean that. I will once again clean you with my water. तुम नहीं अपने आप को साफ कर पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने जल से साफ करूंगा। That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Amen. And with the power of the Holy Spirit, we are constantly being renewed in Him. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम लगातार नए होते जाते हैं। We are complete in Him, हम उनमें परिपूर्ण हैं, but in our mind we are getting renewed again and again. लेकिन हमारे मन में हमें लगातार वो नया बना रहे हैं, हमारी सोच को नया बना रहे हैं। Amen. That's what Paul also says. Renew your mind. इसलिए पौलुस भी कहता है कि अपने मन को नया करो या सोच को नया करो। That is how we can discover Jesus in us. इस तरीके से हम यीशु को ढूंढ सकते हैं अपने आप में। So I'm going to close with the one final scripture. तो मैं एक आखिरी स्क्रिप्चर के साथ खत्म करने वाला हूँ। A lot we can talk on this subject. इस शीर्षक पे हम बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, But let me finish with this last scripture. लेकिन मैं इस वचन के साथ खत्म करूंगा। John chapter 16, यूहन्ना का 16 verse 23 23 वचन and 24. और 24। Okay, John 16, 23, 24. यूहन्ना का 16 23 और 24। Yes. उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मेरे नाम में परमपिता से तुम जो भी मांगोगे वह उसे तुम्हें देगा। अब तक मेरे नाम में तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो तुम पाओगे ताकि तुम्हें भरपूर आनंद हो। Amen. So, this scripture, let us not try to think, okay, today if I ask for a car, He will give, phone, He will give, a girlfriend or boyfriend. Let's not think like that. ये वचन को पढ़ के ये सोच हम में नहीं आना चाहिए कि चलो गाड़ी के लिए मांगता हूँ, फोन के लिए मांगता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए मांगता हूँ। नहीं, ऐसे सोच नहीं रखना है हमें। If it is really important, अगर ये वाकई में जरूरी है, of course we can ask. हाँ जरूर हम मांग सकते हैं। But if you ask in vain, लेकिन हम ऐसे ही खाली फिली मांगेंगे, probably God also knows this is not good for us. तो शायद परमेश्वर भी जानेंगे, बोलेंगे ये तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, So He will not answer. तो वो नहीं मानेंगे, नहीं उत्तर देंगे। But लेकिन I want to speak to the Father to this after hearing this message. I want all of us to speak to the Father. लेकिन ये पूरे संदेश के बाद मैं चाहता हूँ कि हम सब परमेश्वर पिता से बात करें। Like Jesus said, ask the Father. तो जैसे यीशु ने कहा कि परमेश्वर पिता से मांगो, So let us ask, Father, I want to know you. तो चलिए हम पूछेंगे, मैं
आपको जानना चाहता हूँ। I want to know Jesus more. मैं यीशु को और ज्यादा जानना And चाहता I हूँ। want to know the Holy Spirit who's with me, who's always helping me. और मैं पवित्र आत्मा को और जानना चाहता हूँ जो हमेशा मेरे साथ है और मेरी मदद करते हैं। Can you help me to come into this beautiful relationship of eternal life? क्या आप मेरी मदद करेंगे परमेश्वर के मैं इस सुंदर रिश्ते में जो अनंत काल का है उसमें आऊं? That is what John chapter 17 verse 3 says. This is eternal life, that we may know the Father and the Son. यही यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि यही अनंत काल का जीवन है कि तुम परमेश्वर पिता और पुत्र को जानो। So can we come into this place and experience you completely, Lord? तो परमेश्वर क्या मैं इस ऐसे स्थान पे आ सकूं ताकि मैं आपको पूरी तरह से जान सकूं? So let this be our prayers. तो आइए ये हमारा प्रार्थना बने, हमारी प्रार्थना बने। And I am sure और मुझे यकीन है we will begin to see Jesus more better. कि हम यीशु मसीह को और अच्छी तरह से देख पाएंगे। And I also know that we have needs in life. और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी जरूरतें हैं जीवन में। The Father knows that. और परमेश्वर पिता भी जानते हैं इस बात को। But let us seek the Father. लेकिन चलिए आए हम परमेश्वर पिता को खोजें। Whatever thing that we need in our life, He will definitely meet our needs. जिन बातों की जरूरत हमें है उन जरूरतों को परमेश्वर पिता जरूर पूरा करेंगे। Amen. Amen. So let us not worry about what we're going to eat, what we're going to drink. Let us trust the Father. तो चलिए हम जो खाना है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर पिता पर विश्वास करेंगे। And He will bless us. और वो हमें आशीषित करेंगे। Amen. Amen. So with this, let me close the same prayer that I asked to pray. I'll pray for all of us. तो मैं अब समाप्त करूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। Let's close our eyes and pray. चलिए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Father, in Jesus' name we ask you this. परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। We want to know you. हम चाहते हैं कि हम आपको जाने। We want to know Jesus. हम यीशु को जानना चाहते हैं। And we want to know the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं। You're all inside us. आप सब हम में हैं। And we want to know you. और हम चाहते हैं कि हम आपको जाने। And we want to be led by you. और आप हमारी अगुवाई करें। May our understandings be opened. हमारी समझ खुल जाए। May our eyes be enlightened. हमारी आंखों पर रोशनी पड़े। So may we walk our life from this place of a life of faith. ये ऐसा हो कि हम अपने जीवन को विश्वास में जिए। And also faithfulness. और विश्वास योगी बनकर भी। Father, परमेश्वर पिता, bless us, Father. हमें आशीषित कीजिए। In Jesus' name we ask you this. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 I believe this message would have blessed us. मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश से आपको आशीष मिली है। See you all soon. आप सबको बहुत ही जल्द मिलेगी। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीषित करे।